Good morning, students. Today again, I am here just to discuss the topic domestic to international business and modes of entry. Till now, we have discussed about the number of topics. What is international business? What are the challenges for international business? What are the international business environment, right? And what are the restraining forces? What are the motivation forces? But at last, when all the things are okay, so now the question comes, what are the modes of entry? मैं किसी दूसरे कंट्री में अपने बिजनेस के लिए एंट्री करना चाहता हूँ तो किस तरीके से एंट्री कर सकता हूँ, कौन कौन से मोड हो सकते हैं, कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं which can help me, which can I can choose just to entry when I'm taking the decision for international business. So today we are here just to discuss about modes of entry when I'm going towards international business. Guys, it is very easy just to make a business at your own country because there is your own country. You have some rights into your own country. But when you are entering into the another field, so definitely you have to choose some definite option, definite mode of entry. As you have taken the one is exporting, this is one of the method. Second, we have chosen licensing, this is one of the method. Third, we have taken franchising, this is one of the method. Merger and acquisition, joint venture, and last but not least, wholly owned subsidiary. ये 6 ऐसे मेथड्स हैं जिसमें से हम अपनी सुटेबिलिटी के बेसिस पे किसी भी एक मेथड को चूज कर सकते हैं व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस. जैसे एक्सपोर्टिंग, इट इज़ वेरी कॉमन मेथड. आप यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. Totally production into your own country, into your India, and finally this product is exporting into the another country. या फिर हम कह सकते हैं हम उस दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द मोड. दिस इज द easiest and cheapest mode of international business. When a new entrepreneur came into the market for international business, so he choose the first method, एक्सपोर्टिंग मेथड. इसमें हमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ एज सच, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सिंपली यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड जस्ट यू गेट द लाइसेंस. सेकंड वन एज वी हैव टेकन द लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग में क्या होता है कि प्रोडक्शन मेरा है, प्रोडक्ट मेरे इंडिया का है, बट for the same product I am giving the one authority to the international party, just they can sell out the same product into their own country. As the third one, we have taken the franchisee. Franchisee, there are just two parties, the one is the franchisor and one is the franchisee. मैं franchisor और second वाला party franchisee. franchisor ने franchisee दी किस फॉर्म में, एक लाइसेंस की फॉर्म में कि आप मेरा टैग, मेरा लोगो, मेरा प्रोडक्ट के जो उसकी रेसिपी है या उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं. जस्ट सेल आउट दिस थिंग्स इनटू योर ऑन कंट्री. एंड व्हाट द franchisee in the form of like fee, royalty, and what about the monetary remuneration becomes between the franchisor and franchisee, it will be hand over to the franchisor because finally you are giving your name. आप उस नेम के बेसिस पर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं. अब बात करते हैं जैसे मर्जर्स की और एक्विजिशंस की. मर्जर में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी है दूसरी कंपनी में आके मर्ज हो गई, मिक्स हो गई. जैसे भी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग का सिस्टम आ रहा है कि जो 4 हमारी बैंकिंग यूनिट्स रहेंगी, जो बाकी बैंक्स हैं उस बैंक में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं. तो मर्ज मतलब कि हमारे जो शेयर्स हैं वो दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाते हैं. तो ये डोमेस्टिक लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं. तो दिस लेवल विल बी टेक प्लेस व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस लेवल. एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर कर लेना. एक्वायर जिस लाइक परचेज है कि कोई एक सिक इंडस्ट्री है जिसका मार्केट शेयर ख़राब हो रहा है, वो सही से रन नहीं कर पा रही है, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है कि हमारा सही से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है. सो ऑल दीज रीजन्स मे बी देयर. सो ए बिग कंपनी हु इज़ गोइंग वेल, दे कैन परचेज एंड दे कैन एक्वायर एंड मिक्स दैट पर्टिकुलर कंपनी इनटू हिज ऑन कंट्री, ऑन कंपनी. दैट इज़ अ वन पार्ट ऑफ एक्विजिशन. एक्वायर करना, खरीद लेना है तरीके से. सॉरी. यदि जॉइंट वेंचर की बात करते हैं, जॉइंट वेंचर इट इज़ वेरी क्लियर विद द नेम जॉइंट. दो कंपनी आपस में क्या हो जाती हैं, जॉइंट हो गई. वेंचर मतलब यूनिट, कंपनी.
और एक वो नई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं एंड नेम ऑफ द बोथ कंपनी इज हाईलाइटेड व्हेन वी आर टेकिंग अ न्यू नेम ऑफ दिस कंपनी एज यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। जो आईसीआईसीआई है इट इज़ योर डोमेस्टिक कंपनी, जो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इज योर फॉरेन बेस्ड कंपनी। दोनों कंपनी आपस में क्या हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गया और एक नया नाम उन्होंने बना दिया आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। जैसे एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, टाटा एआईजी, है ना। तो ये सब किसका पार्ट है, हमारा जॉइंट वेंचर। मारुति सुजुकी, तो ये सुजुकी अलग है, मारुति अलग है, दोनों आपस में जॉइंट वेंचर हो गए। तो दिस जॉइंट वेंचर इट मे बी एट द डोमेस्टिक लेवल, इट मे बी एट द इंटरनेशनल लेवल होगा। तो एक कंपनी डोमेस्टिक हो सकती है, एक कंपनी इंटरनेशनल हो सकती है। डोमेस्टिक है तो दोनों कंपनी डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। तो किसी भी लेवल पे ये जॉइंट वेंचर भी आपका एक मेथड हो सकता है। 6 की हम बात करें हॉली ऑन सब्सिडरी। हॉली ऑन का मतलब है कि जिसके पूरे राइट्स आपके पास हैं और आपकी वो सब्सिडरी यूनिट का मतलब है कि जैसे उसका मेन यूनिट तो कहाँ पर है, आपका अपनी कंट्री में है और उसका सब्सिडरी उसी का ही सेकंड यूनिट आपका कहाँ चल रहा है, दूसरी कंट्री में चल रहा है। लेकिन पूरा कंट्रोलिंग किसके पास है, आपके पास है। हो सकता है आप उसकी डायरेक्टिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए किसी ऐसे अथॉरिटी को वहाँ से हायर कर ले, बट लेकिन टोटल कंट्रोलिंग ऑफ changing in the taste, quality, product, price, whatever you want to get some change, it is totally in the hand of the host country. host मतलब जहाँ की वो कंपनी स्टेब्लिश है और सब्सिडरी का मतलब जहाँ आपने दूसरी कंट्री में उसको स्टेब्लिश किया है। तो ये कुछ हमने से मेथड्स लिखे हुए हैं दैट हेल्प अस जस्ट टू knowing the mode of entry when you are taking a decision of international business। अब डिपेंड करता है वेंचर टू वेंचर, एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर की in which method he feel more suitable according to his choice, according to his taste, whatever it suitable for him, he can just choose any one method। but लेकिन guys it's my advice, my suggestion कि basically majority of the international business are like on the basis of exporting। as a initial level we start with exporting, but slowly when you become comfortable with this business, so you can just go for like licensing, franchising, joint venture, whatever you want to do। so thank you so much for having a discussion on mode of entry when you are entering to international business from domestic market। thank you so much students।